Good morning, students. Today we are going to see more problems on dissolution of term. In today's problem or today's class, we will see how to pass the journal entries. अभी जब हम लोगों को journal entries पास करनी है तो हमें फर्स्ट क्या करना पड़ेगा. वी हैव टू प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड योर बैंक अकाउंट. ये जब हम लोग करेंगे उसके बाद ही हम लोग क्या कर सकते हैं. वी कैन डू द पास द जर्नल एंट्री. इट विल बी वेरी ईजी टू पास द जर्नल एंट्री. सो लेट्स टेक द प्रॉब्लम फर्स्ट. Rajiv and Sanjeev are partners sharing profits and losses equally. They decide to dissolve the firm on 31st March 2019. The balance sheet of the firm on 31st March 2019 was as under. Balance sheet as on 31st March 2017. It is 19, okay, it is not 2017, it is 2019. Liabilities amount rupees, assets amount rupees. Reserve fund 8,000, creditors 12,800, bills payable 7,200. Capital account Rajiv 20,000, Sanjeev 24,000. Total 72,000. On the asset side, you have building 20,000, furniture 6,000, debtors 18,000, stock 20,000, bills receivable 2,000, cash 6,000, total 72,000. The assets realized as under. Stock 18,400, debtors 16,600, bills receivable 1,980. Sanjeev agreed to take over the building for rupees 18,000 and Rajiv agreed to take over furniture as 5,400. The realization expenses amounted to 600. A very easy problem. So here pass journal entries and write up the realization account and partners capital account. So let's first prepare the realization account. So here first step is what to हमें क्या करना है. record the sundry assets at their book value. So हमारे sundry assets कौन से है. building, furniture, debtors, the full amount is there is no RDD, then stock and bills receivable. Cash will not come. So two sundry assets, building 20,000, furniture 6,000, debtors 18,400, stock 20,000, bills receivable 2,000. Total कितना आया 66,000. Then the second step is what you have to record at the liabilities at the book value. तो हमारे liabilities कौन से है. यहाँ पे reserve fund नहीं आएगा. It will be distributed among the partners. Creditors 12,800, bills payable 7,200. So by sundry liabilities, creditors 12,800, bills payable 7,200, total 20,000. Now next is one assets were realized. Okay, so assets जब realize होते हैं, अगर partners लेने से पहले हमें asset realize की value लिखनी है. assets कितना है. stock 18,400 पे realize किया, debtors 16,600 पे and bills receivable 1,900 पे. so by cash account, stock 18,400, debtors 16,600, bills receivable 1,900, total 36,980. देन अगर पार्टनर्स ने कुछ लेके गया देन यू हैव टू रिकॉर्ड दैट. सो पार्टनर संजीव हैज़ एग्रीड टू टेक ओवर बिल्डिंग एट रुपीज हाउ मच 18,000. सो बाय संजीव कैपिटल अकाउंट बिल्डिंग 18,000. देन राजीव एग्रीड टू टेक ओवर फर्नीचर. सो बाय राजीव कैपिटल अकाउंट फर्नीचर टेकन 5,400. ये हो गया. देन कम्स द अमाउंट ऑफ क्रेडिटर्स. जब हम लोग क्रेडिटर्स रहते हैं, अगर क्रेडिटर्स कौन से हमारे, यू हैव क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेएबल, तो वो उनको हम लोगों को रियलाइज करना है. सो टू कैश अकाउंट क्रेडिटर्स 12,800, बिल्स पेएबल 7,200, 20,000 रियलाइज हो गया.
देन यू हैव योर रियलाइजेशन एक्सपेंस कितना है 600. सो फर्स्ट यू हैव टू चेक वेदर योर टोटल मतलब जो टोटल है, जैसे कि हमारे संडे बुक वैल्यू कितने हैं 20,000 प्लस 36,980 कैश. ओके, राजीव ने टेकन ओवर 18,000 एंड 5,400 इज इनफ टू पे ऑफ 20,000. ओके, 20,000 कौन सा है ये. सो ये जब हम लोगों को पता चलता है कि वी कैन पे ऑफ, देन यू हैव टू राइट टू कैश अकाउंट creditors 12,800 and your bills payable 7,200, and even it is the amount is there to pay off your what realization expenses, that is 600 rupees. After you do the total you get 86,600 and you get a difference of how much 6,220. So since here there is no ratio given, you have to think that they are doing it equally, they are sharing the profit and losses equally. So by realization account, loss on realization transferred. By partners capital account, loss on realization transferred, Rajiv 3,110, Sanjeev 3,110, टोटल 6,220. ये हो गया आपका रियलाइजेशन अकाउंट. नेक्स्ट इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. सो इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फर्स्ट थिंग इज व्हाट बैलेंस ब्रॉट डाउन. सो हमारा बैलेंस कितना है 20,000 24,000 20,000 24,000. देन द अमाउंट ऑफ रिजर्व कितना है 8,000. इट इज़ डिवाइडेड इक्वली, डेट मीन्स 4,000 4,000. सो बाय जनरल रिजर्व 4,000 4,000. देन वट एवर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस थे, मतलब जो पार्टनर्स ने असेट्स लेके गए थे, कितना है 18,000 एंड संजीव कितना है ही हैज़ टेकन 5,400. सो हियर वट एवर द डिफरेंस है, जो डिफरेंस है वो क्या करेंगे पार्टनर्स के बीच डिवाइड हो जाएगा. सो हियर द पार्टनर हैज़ टेकन ओवर द असेट्स. असेट्स कितने पे लेके गए, संजीव हैज़ टेकन हाउ मच 18,000. So Sanjeev account 18,400, it is not 18,000, it is 18,400 rupees. Okay, and there are lot of mistake in this textbook of your the new textbook which is given. So यहाँ पे it is 18,000 and your अपना ये कौन है राजीव हैज़ टेकन हाउ मच 5,400. सो 5,400 रुपीज़. देन रियलाइजेशन एक्सपेंस कितने हैं 3,110 3,110. जो भी डिफरेंस है वो कहाँ पे जाएगा कैश अकाउंट में, डेट इज़ 15,490 6,890. ओके, ये हो गया उनका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. नाउ वी हैव टू डू द कैश अकाउंट इन द वर्किंग नोट, दैट इज बाय रियलाइजेशन बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है 6,000 इज द बैलेंस. ओके, सो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 6,000. बाय रियलाइजेशन अकाउंट 20,000 द अमाउंट विच आर टेकन मतलब पेड ऑफ किया है. देन लाइबिलिटीज़ के, देन रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 600. राजीव कैपिटल अकाउंट जो हम लोगों ने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जो डिफरेंस मिला था 15,490, संजीव 6,890. एंड रियलाइजेशन जो हमारे ये थे वो विच वॉज रियलाइज, तो असेट्स के हमें कितने मिले 36,980. सो टोटल कितना आया बोथ द साइड 42,980. नाउ कम्स हमारा जो हमारे ये है जर्नल एंट्रीज पास करने के. सो फर्स्ट जर्नल एंट्री विल बी रिलेटेड टू द assets at the book value. So realization account debit to building 20,000 6,000 18,400 20,000 and 2,000. So 20,000 6,000 18,000 20,000 and 2,000. So actually यहाँ पे 18,400 लिया हुआ है, it is only 18,000. Okay, so here क्योंकि there is a mistake, there is extra 400, but while calculating they have not considered 400 rupees. That means the mistake is what 18,000 है actual amount, it is not 18,400 rupees. Okay, so there are lots of mistake in this book. Next ये होगा बीइंग सन्ड्री एसेट्स ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट. नेक्स्ट स्टेप कौन सा होगा सन्ड्री लाइबिलिटीज़ का. सो योर सन्ड्री लाइबिलिटीज़ क्या है
creditors 12,800, debtors 7,200. So creditors account 12,800, bills payable, not debtors, bills payable 7,200, to realization account 20,000, being sundry liabilities transferred to realization account. ये हो गया. देन कम्स द जनरल रिजर्व. ओके, जो जनरल रिजर्व हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट किया था, सो इट विल बी हियर. सी general reserve. So general reserve 8,000 to Rajiv capital account 4,000 and Sanjeev capital account 4,000, being general reserve transferred to partners capital account. Then comes the assets which was taken over by the partners and the realization value. So here assets कौन से हम लोगों ने रियलाइज किए. पहले assets को रियलाइज किया कितना, 36,980. So it is here 36,980. So cash account 36,980 to realization account 36,980. नेक्स्ट कम्स ये पार्टनर्स ने जो लेके गए, संजीव 18,000 एंड राजीव 5,400. सो इट इज़ Sanjeev capital account 18,000 to realization account 18,000 and Rajiv capital account 5,400 to realization account 5,400. ये हो गया पार्टनर्स के रिलेटेड. नाउ व्हेन द asset liabilities are realized, तो वो वाली एंट्री आएगी. वो वाली एंट्री क्या आएगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट. हियर ये वाली जो एंट्री है वो आएगी. उसके बाद कैश वाली डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस वाली आएगी. सो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 20,000 टू कैश अकाउंट 20,000, बीइंग सन्ड्री लाइबिलिटीज पेड. उसके बाद आएगा रियलाइजेशन अकाउंट 6 डेबिट 600 रुपीज़ टू कैश अकाउंट 600 रुपीज़ बाय रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड. ओके, देन कम्स द, जब हमारे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड होते हैं, देन कम्स द लॉस विच इज़ ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. सो राजीव कैपिटल अकाउंट 3,110, संजीव कैपिटल अकाउंट डेबिट 3,110 to realization account 6,220, being realization loss transfer to partners capital account. So ये हो गया this entry which is related to the partners capital account. Then the next entry will be the final settlement, cash account वाली final settlement, that is here this entry. So Rajiv capital account debit 15,490, Sanjeev capital account debit 6,890 to cash account to 22,380, being final settlement made. अभी आप लोग थिंक करते होंगे कि हम लोगों ने कैश अकाउंट क्यों प्रिपेयर किया. Cash account is prepared only to find out whether a problem is correct or not. Okay, they have not asked you to prepare cash account, but still we need to prepare cash account so that we are able to find out whether a problem is correct or not. So let's see how the journal entries look. So journal entries, first entry is related to the assets which are transferred to realization account at their book value. Second is liabilities which are transferred to the realization account at their book value. Third is general reserve which is distributed among the partners. Next, assets which was realized. Then any partner has taken the assets that it should be recorded. Then comes the liabilities which are paid off. Then realization expenses which are paid off, loss or profit which is transferred, and the last amount is amount which is amount of cash used for settlement of the account. So these are the journal entries which are related to the डिसोल्यूशन अकाउंट. ओके, डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म. सो ये हो गए हमारे जर्नल एंट्रीज. इट्स वेरी इजी. ओनली थिंग, फर्स्ट यू हैव टू प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, देन यू हैव टू प्रिपेयर योर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. होने के बाद हमें फर्स्ट चेक करना है क्या, वी हैव टू चेक द रियलाइजेशन अकाउंट के बाद हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होगा. उसके बाद हमारा क्या होगा, वी हैव टू प्रिपेयर द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बाद हमारा कैश अकाउंट प्रिपेयर करना है. इवन इफ दे हैव नॉट आस्क्ड, यू हैव टू प्रिपेयर कैश अकाउंट सो दैट वी आर एबल टू नो वेदर आवर प्रॉब्लम इज करेक्ट और नॉट. नेक्स्ट we will see a problem wherein
वन पार्टनर बिकम्स इंसॉल्वेंट, और वो लोग जब एक पार्टनर डिसाइड करते हैं कि एक पार्टनर इंसॉल्वेंट है, मतलब उसका कैश कुछ भी नहीं है, उसके बाद ही इज़ नॉट एबल टू पे ऑफ द लाइबिलिटीज, दैट टाइम हम लोग कैसे अकाउंट प्रिपेयर करेंगे? सो विद्या, शर्मिला एंड मेघा आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो 5:3:2. देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019. देखो, हम लोगों ने जो लास्ट जो प्रॉब्लम्स किए थे, तो वहाँ पे हार्डली हमें कुछ वर्किंग नोट किया, क्योंकि यहाँ पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेशंस वगैरह नहीं है, तो हम लोगों ने बहुत थोड़े वर्किंग नोट्स किए. बट व्हेन द वन पार्टनर और टू पार्टनर और थ्री पार्टनर becomes insolvent, that time there is a working note and you have to show that working note properly. तो विद्या, शर्मिला एंड मेघा आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो 5:3:2. द बैलेंस शीट एज ऑन 31 March 2019 was as under. Liabilities amount rupees, assets amount rupees. Capital Vidya 50,000, Sharmila 40,000, Megha 30,000. Current account is given over here. Vidya 6,000, Sharmila 6,000. Sundry creditors 28,000, bills payable 10,000. Then on the liability side, current sundry assets 1,28,000, bank 16,000, current account Mega 26,000. They decide to dissolve the partnership firm on the above date as under. Sundry assets realized at 80% of the book value. Unrecorded outstanding expenses rupees 8,000 paid off. Realization expenses amounted to 6,000. Sundry creditors and bills payable were paid out at rupees 34,000. Mega became insolvent and only 2,000 was recovered from private estate. Prepare realization account, partners current account, partners capital account and bank account. Okay, so here the whatever the accounts are there, it's the same. Okay, अगर पार्टनर इंसॉल्वेंट हुआ तो भी सेम है, लेकिन जो उसका अमाउंट डेफिशिएंट अमाउंट है, डेफिशिएंसी है, वो क्या करेंगे, बाकी के जो पार्टनर्स है, अभी यहाँ पे मेगा इंसॉल्वेंट हुआ है, तो विद्या एंड शर्मिला क्या करेंगे, उनके उसका जो लाइबिलिटीज़ है वो लोग पे करेंगे, एंड देन दे विल close off the books of accounts. So this is how the problem is prepared. So let's see. इन द बुक्स ऑफ विद्या, शर्मिला एंड मेगा, फर्स्ट स्टेप क्या है, हमारे जो बुक वैल्यू है असेट्स एंड लाइबिलिटीज़ के, वो रिकॉर्ड करने हैं. सो हमारे सन्ड्री एसेट्स डायरेक्टली दे हैव गिवन हाउ मच, 1,28,000. सो टू सन्ड्री एसेट्स अकाउंट 1,28,000. नेक्स्ट इज द लाइबिलिटी क्या है हमारी, sundry creditors and bills payable. So by liabilities accounts, creditors 28,000, bills payable 10,000, 38,000. Okay, then sundry assets were realized at 80% of the book value. अभी हमारा assets, sundry assets कितने हैं, 1,28,000. तो उसका अभी क्या करना है, हमें 80% निकालना है. So 1,28,000 multiply by 80/100, 0, 0, 0, 0. Okay, so when you multiply 1,280 multiply by 80 rupees, the answer what you get is what, 1,02,400 rupees. Okay, ये हो गया आप लोगों का what you called, this is the amount of assets which was realized. So by bank account sundry assets 1,02,400 rupees. Then comes sundry expenses were amounted to rupees 8,000 rupees. तो उसके पहले हमें क्या करना है, हमारे जो लाइबिलिटीज़ है वो चेक करने हैं. तो यहाँ पे एडजस्टमेंट क्या दिया है, सन्ड्री क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेएबल व पेड रुपीज़ 34,000. सो यहाँ पे क्या करना है, जो हमारे बिल्स पेएबल, जो सन्ड्री क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेएबल व पेड एट रुपीज़ 34,000, एक्चुअल अमाउंट कितना आता है, 38,000 आता है. सो यर टू बैंक अकाउंट क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेएबल 34,000, और हमारा वैल्यू कितना है यहाँ पे, 38,000.
8,000 है, तो हम लोगों ने कितने में पे किया, 34,000 पे किया. देन unrecorded outstanding expenses rupees 8,000 paid off, so that also we have to write outstanding expenses 8,000 rupees, so total comes to 42,000. देन ये भी हो गया. रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अभी रिकॉर्ड करना है. सो टू बैंक अकाउंट realization expense is 6,000. Okay, how much here, 6,000, so it will be 6,000 over here. Then next is what, sundry creditors होगा, mega become insolvent, so this entry will be shown in the partners capital account. So now before we transfer it to partners capital account, we have to transfer first to current account. So by partners current account, loss transferred विद्या according to the ratio, उनका रेशियो कितना है, 5:3:2, मतलब 5/10 विद्या, शर्मिला 3/10 and मेगा 2/10. So when we divide 35,600, we get 17,800, 10,680 and 7,120. So 35,600. Total कितना आया, 1,76,000. Now we will prepare the partners current account. So यहाँ पे पार्टनर्स करंट अकाउंट, डेबिट क्रेडिट, पर्टिकुलर्स विद्या शर्मिला मेगा, पर्टिकुलर्स विद्या शर्मिला मेगा, ये हो गया पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट. सॉरी, दिस इज यस, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करने से हमें पहले क्या करना है, पार्टनर्स करंट अकाउंट प्रिपेयर करना है. सो यर पार्टनर्स करंट अकाउंट के फर्स्ट उनके क्या है, विद्या एंड शर्मिला कितना है, 6,000. सो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, विद्या 6,000, शर्मिला 6,000. और यहाँ पे अपने असेट साइड पे क्या है, मेगा का करंट अकाउंट है, डेट इज 26,000. सो बाय टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 26,000, ये हो गया. देन वट एवर रियलाइजेशन लॉस था, रियलाइजेशन लॉस कितना था, 17,800, यहाँ पे वेट, 17,800, 10,680 and 7,120. So this will be shown over here. To realization account, loss 17,800, 10,680 and 7,120. Now whatever difference you get, this will be transferred to partners capital account. So difference कितना आ रहा है, 17,800 minus 6,000 will give you 11,800. 10,680 minus 6,000 will give you 4,680. 26,000 plus 7,120, 33,120. So directly 33,120. ये हो गया पार्टनर्स करंट अकाउंट. नेक्स्ट इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि यहाँ पे कैपिटल भी दिया हुआ है. कैपिटल कितना दिया है, विद्या शर्मिला मेगा, ओके, 50,000, 40,000 and 30,000. So by balance brought down 50,000, 40,000, 30,000. ये हो गया उनका what you call balance which is brought down. Then the balance will come of partners current account. So to partners current account, 11,800, 4,680 and 33,120. So this is partners current account. Okay, so once partners current account we have prepared, okay, उसके बाद हमें क्या करना है, बैंक में देखना है वट एवर अमाउंट्स आर देयर. ओके, यहाँ पे बैंक में कितना है, मेगा बिकेम इंसॉल्वेंट ओवर ईयर, मेगा बिकेम इंसॉल्वेंट, और उसके अकाउंट से कितने हम लोगों ने लिए, सिर्फ 2,000 हमें मिला. सो टू बैंक अकाउंट 2,000 रुपीज. नाउ फर्स्ट वी हैव टू सी द इंसॉल्वेंट पार्टनर का डिफरेंस. जो इंसॉल्वेंट पार्टनर का डिफरेंस है वो क्या करेंगे, बाकी के जो दो पार्टनर है वो देखेंगे. सो यहाँ पे मेगा का यहाँ पे मेगा जो है उसका डेबिट साइड टोटल कितना है, 33,120.
और क्रेडिट साइड कितना है 30,000 प्लस 2,000 32,000. सो डिफरेंस कितना आ रहा है 1,120. व्हाट इज द डिफरेंस 1,120. नाउ दिस 1,120 ये जो डिफरेंस है 1,120 मेगा का जो डिफरेंस है वो क्या करेंगे यहाँ पे विद्या और शर्मिला अपने रेशियो के हिसाब से करेंगे. व्हाट इज द रेशियो इज व्हाट 5:3. अगर 5:3 इनका क्या है रेशियो तो हमें मेगा का रेशियो नहीं लेना है दैट इज 2/10. सो व्हेन यू टेक मेगास deficiency that is 1,120 this will be divided by who that is विद्या कितना है 1,120 multiply by 5/8. 5 plus 3 is 5/8. So we'll give you 700 rupees. And then you have your शर्मिला कितना है 1,120 multiply by 3/8 will give you 420. So here by Vidya account 700, by Sharmila account 420. The same entry will come over here to Mega account Vidya 700, Sharmila 420. Now whatever difference you get will be transferred to. So here Mega's account is settled 33,120, 33,120. Now remaining is what Vidya and Sharmila. So उनका difference कितना है their difference is how much 30. उनका क्रेडिट साइड कितना है विद्या का 50,000 है और उनका डेबिट साइड कितना है 11,800 प्लस 700. सो ईयर 12,100. सो 12,100 माइनस 50,000 विल गिव यू 37,500. एंड हियर यू हैव 40,000 and here you have 4,680 plus 420 will give you 5,100. So 5,100 minus 40,000 will give you 34,900. So this difference will go to the bank account. So let's check the bank account. सो बैंक अकाउंट में फर्स्ट क्या है बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है 16,000. सो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 16,000. नेक्स्ट कम्स द रियलाइजेशन अकाउंट. अभी हमारे रियलाइजेशन अकाउंट में क्या क्या है विल चेक द रियलाइजेशन अकाउंट. सो रियलाइजेशन अकाउंट यू हैव बैंक 1 lakh. In bank you have so by bank account 1 lakh to 1,02,400 and to bank account 42,000 to bank account 6,000. ये है रियलाइजेशन अकाउंट्स में. सो इट विल गो टू रियलाइजेशन अकाउंट का यहाँ पे डिटेल्स आ जाएंगे. टू रियलाइजेशन अकाउंट to realization account 1,02,400 by realization account 42,000 that is outstanding expenses और creditors and bills payable जो पे किए थे वो and dissolution expenses 6,000 rupees. ओके देन वट एवर डिफरेंस हमें पे डिफरेंस आया है कितना आया है डिफरेंस यहाँ पे जो बैलेंस था वो कहाँ पे आ जाएगा इट विल गो टू मेगाज अकाउंट. ओके सो मेगा के अकाउंट में से कितना आया 2,000 रुपीज़. ईयर मेगा के अकाउंट बाय बैंक अकाउंट 2,000. here by bank account 2,000 and to bank account 37,500 34,900. so to Mega's capital account 2,000 and by Vidya's capital account 37,500 बाय शर्मिलास कैपिटल अकाउंट 34,900. तो ये हो गया बैंक अकाउंट. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट क्रेडिट एंड डेबिट साइड. अगर हमारे दोनों साइड टैली हो गए डेट मीन्स आपका प्रॉब्लम इज करेक्ट. सो क्रेडिट साइड यू हैव 42,000 प्लस 6,000 प्लस 37,500 प्लस 34,900. टोटल कितना आया 1,20,400. bank account on the debit side of the bank account you have 16,000 plus 1,02,400 plus 2,000 will give you 1,20,000. ये हो गया
अपने डेबिट साइड का टोटल. सो वंस बोथ द साइड टैलीज सेम आंसर आ गया 1,20,400. दैट मीन्स योर प्रॉब्लम इज करेक्ट. सो in this problem, that is when one partner becomes insolvent, हमें क्या करना है, पहले फर्स्ट स्टेप क्या करना है, हमारा जो इंसॉल्वेंट पार्टनर है उसके प्राइवेट प्रॉपर्टीज से कितना रिकवर कर सकते हैं वो पहले लिखना है. देन वी हैव टू फाइंड द डिफरेंस. जो डिफरेंस आता है, अभी यहाँ पे मेगा का जो डिफरेंस आया वो क्या किया, विद्या एंड शर्मिला ने डिवाइड किया. कैसे डिवाइड करेंगे, अकॉर्डिंग टू देयर रेशियो. अभी इनका रेशियो क्या था, 5:3:2. मेगा का कितना था, 2/10 था. तो वो डिडक्ट करने के बाद हमें कितना रहता है, 5:3 रहता है. सो 5:3 रेशियो किया तो विद्या का कितना आता है, 5/8 एंड शर्मिला का 3/8. सो अकॉर्डिंग टू दिस रेशियो हमें क्या करना है, वो दोनों डिवाइड करके हम लोगों को वो डिस्ट्रीब्यूट करना है विद्या की मेगा की डेफिशिएंसी. सो व्हेन वन पार्टनर बिकम्स इंसॉल्वेंट. इन नेक्स्ट वीडियो वी विल सी व्हेन more than one partner becomes insolvent और all the partners become insolvent, तब हम लोग कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे.